Hello my dear students, welcome back for the next lecture. We were doing mathematical tools. Today we will take the topic regarding angle. Angle, this is a plane angle. There are two types of angles. One is plane angle, which is a, you can say, two-dimensional angle. Plane angle जो हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, that is a two-dimensional angle. Two dimensions में. It's a plane angle जिसको आप डिग्रीज में मेजर करते हैं. 30 degrees, 45 degrees, 90 degrees, 360 degrees. This is called plane angle. In physics or in maths, you can say the SI units is not in degree. It's radians. तो आज हम radians के बारे में भी पढ़ेंगे. And this is a plane angle. तो let's do plane angle. Plane angle पता है छोटी क्लासेस पढ़ते हैं कि एक लाइन ऐसे होती है और उसके बीच में this is another line. So this is the angle between two lines. This is called a plane angle. In a plane, this is a plane. एक पेज है, पेज में हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की. उसके बीच में जो एंगल है उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं. This is a plane angle. It's a two-dimensional angle. And in its SI unit is radians. So now let's do what is radian. So, for example, we have a circle. This is a circle with center O, and this is say radius is r, and this is the length of the arc. So, आपको पता है there is a relation between length r, radius r, and theta. What's that relation? Theta is equals to L by R. It's very important formula. आपने पहले भी पढ़ा है छोटी क्लासेस में. Theta equals to L by R. What is L? L is the length of the arc and R is the radius of the circle. So this is theta equals to L by R. And now see, अगर L भी अगर आप meters में लेंगे तो R भी meters में लेंगे, it has no units. So theta angle has no units, but still angle is measured in radians. So you will find this is a supplementary quantities. Angle comes in physics. In physics, angle comes in a supplementary quantities. So it has no units because it is a ratio. But still, we measure the angles in degrees or in radians. Radians is the SI unit. Now what is radian? 1 radian is the angle subtended by an arc equals to the radius of the circle. तो अगर हम एक सर्कल लेते हैं, उसका अगर रेडियस से 5 सेंटीमीटर हो तो लेंथ भी उतनी ही होनी चाहिए. तो if L is equals to R, if L is equals to R, so what will be theta? Theta equals to R upon R, that is equals to 1, and this is called 1 radian. तो 1 radian is that angle. ये जो angle है, this is theta and this is called, here it is equals to 1 rad. शॉर्टकट में हम उसको rad लिखते हैं, otherwise it's 1 radian. So 1 radian is the angle subtended by an arc equals to the radius of the circle. तो अगर length exactly radius of the circle हो, वो length, वो arc जितना angle center में subtend कर रही है, उस angle को हम 1 radian कहते हैं. तो 1 radian is the angle subtended by an arc of length equal to the radius of the circle. This is the formula of the angle. And the SI unit of the angle is radians, and radian is the angle subtended by the arc, which is equal to the radius. Now let's find what is the relation between degrees and radians. Now, for example, this is a plane. So this angle is 0. अगर आप ऐसे घूमते हैं, पूरा घूम जाते हैं, ऐसे घूम जाते हैं, तो कितना आप एंगल घूमे, how much this angle is, obviously this complete angle कितना होगा, it is 360 degrees. And in physics or in maths, this angle in radians is also called 2 pi. This is theta equal 360 degrees, or you can say 2 pi radians. इसका मतलब 360 degrees is equals to 2 pi radians. इसका मतलब 180 degrees कितना होगा, pi radians. 90 degrees कितना होगा, pi by 2. 60 degrees कितना होगा, pi by 3.
45 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 4। 30 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 6। तो दिस इज ऑल इन रेडियंस। तो ये बच्चे लोग आप याद कर लें। दिस इज नॉट ओनली हेल्पफुल इन फिजिक्स बट आल्सो इन मैथ्स। 360 डिग्रीज को हम 2 पाई रेडियंस भी लिख सकते हैं। व्हाट इज पाई? पाई इज द सेम थिंग, पाई इज 22/7। So 360 degree equals 2 pi radians, 180 degree pi radians, and so on. So let's find the relation between the degree and radian. तो हमने क्या पाया? 2 pi is equals to 360 degrees. It means 1 pi, 1 radian, 2 pi radians है. It means 1 radian is equals to 360 upon 2 pi. जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू गेट सम आंसर इज 180 अपॉन पाई। 180 को अगर आप पाई से डिवाइड करेंगे यू कैन डिवाइड इट 180 डिवाइड बाय पाई। पाई की वैल्यू वही है 180 डिवाइड बाय 22/7, तो यू विल गेट 57.27 डिग्रीज। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है? अप्रोक्सीमेटली 57.27 डिग्रीज। तो हमने क्या पाया आज? व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई और 360/2 पाई एंड इट इज इक्वल्स टू 57.27 डिग्रीज। तो कीप इन माइंड रेडियन इज SI यूनिट ऑफ एंगल्स एंड एंगल इज ए supplementary quantity in physics, and 1 radian is equals to 180 upon pi, that is 57.27 degrees. तो आप इसे पूरा ध्यान से देखिए। This is radians. Now let's go further. हम एंगल के बारे में नहीं पढ़ रहे आज। तो इन Cartesian coordinate system, you know Cartesian coordinate system में क्या होता है? We divide the plane into 4 quadrants. तो हम पढ़ रहे हैं एंगल किस किस क्वाड्रेंट में कैसा कैसा होता है। So for example, this is a Cartesian coordinate system. This is origin, this is x-axis, this is y-axis, this is x dash, this is y dash. Now, पहली चीज एंगल जो थीटा है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब हम इसको लेते हैं तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। एंगल हमेशा ऐसे मेजर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट को। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मींस 1/4 पार्ट। तो ये एक प्लेन है, इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और एंगल हमेशा दिस इज एक्स इज पॉजिटिव है, एंगल यहां से मेजर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फॉर एग्जांपल यहां पे है तो एंगल इज टेकन एज दिस एंटी क्लॉकवाइज। दिस एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव। ऐसे आप कहीं भी मेजर कर सकते हैं। यहां जाए तो ये एंगल यहां से हो जाएगा, यहां अगर आए तो एंगल यहां से यहां हो जाएगा, यहां अगर आए तो विल मेजर द एंगल फ्रॉम हियर टू हियर। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं तो यू टेक इट पॉजिटिव। अदरवाइज आप नेगेटिव उल्टा लेंगे तो इट मींस अगर आप एंगल यहां से ऐसे ले रहे हैं तो थीटा इज पॉजिटिव, और अगर आप एंगल यहां से उल्टा ले रहे हैं, इस साइड ले रहे हैं, तो थीटा should be taken as negative. तो फॉर एग्जांपल दिस इज 30 डिग्रीज, तो यहाँ 30 प्लस होगा, और अगर यहाँ ले रहे हैं अगर आप एंगल यहाँ से इस साइड तो थीटा को आप -30 लिखेंगे, 30 डिग्रीज, और पाई बाय 6 रेडियंस। यहाँ प्लस पाई बाय 6 होगा या माइनस पाई बाय 6 होगा। यहाँ से ऊपर जाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो टेक इट पॉजिटिव। तो थीटा अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे विल टेक इट नेगेटिव। तो थीटा इज द एंगल। तो इसको क्लॉकवाइज मूव कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपने यहां से मूव करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट से 0 डिग्री से, और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव। तो दिस इज द यू कैन से द डायरेक्शन टू मेजर द एंगल एंड द साइन कन्वेंशंस रिगार्डिंग द एंगल। लेट्स डू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, trigonometric ratios of allied angles. Very important. Trigonometric ratios of allied angles. तो trigonometric ratios of allied angles को करने से पहले वैसे मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल एक व्यू पॉइंट यहां पे है, एनी पॉइंट है,
इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, से दिस इज थीटा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज y dash, x dash, y dash, this is positive x, this is negative, this is positive, this is negative, it means this is positive and this is positive. So in first quadrant all things sine, cos theta, tan theta and their reciprocals, cot theta, secant theta, cosecant theta, all these are positive. Why these are positive? क्योंकि अगर आप sin theta लेंगे तो perpendicular upon hypotenuse, cos theta लेंगे तो this upon this, tan theta लेंगे तो this upon this. तो जो भी एंगल की वैल्यूज निकलती हैं साइन की, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकलती हैं, दे डिपेंड अपॉन परपेंडिकुलर एंड द बेस, नॉट ऑन द हाइपोटेन्यूज. इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सिंस परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव हियर, बेस इज पॉजिटिव हियर, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव. तो व्हाट वी गॉट? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव. नाउ इफ पॉइंट इज हियर, वी आर टेकिंग सम एंगल हियर, तो यहां पे ये वाला पॉजिटिव रहेगा और ये वाला क्या रहेगा? नेगेटिव. डोंट थिंक अबाउट द एंगल. एंगल कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल कुछ दूसरा एंगल, बीटा एंगल है, डजंट मैटर. तो सी से फॉर एग्जांपल हियर इट इज बीटा. मैं बीटा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप सोचेंगे कि यहाँ पे एंगल कहां से कहां लेना है. एक्चुअली एंगल यहां से यहां लेना है, हमने यहां से यहां लेना है. दिस इज थीटा. फॉर एग्जांपल इन दिस केस दिस इज थीटा, दिस विल बी व्हाट बीटा विल बी है 180 minus theta. तो ये मैं बाद में बताऊंगा. If it is theta, the beta will be 180 minus theta. This is 180 degrees, तो 180 minus theta will be beta. तो बताओ यहाँ पे what is sin beta or sin 180 minus theta? Just tell me what is sin 180 minus theta? तो sin क्या होगा यहाँ से? Perpendicular upon hypotenuse, तो it is positive. What is cos 180 minus theta? Cos 180 minus, this is theta, this is 180 minus theta. तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो cos क्या रहेगा यहाँ पे? नेगेटिव. tan, what is tan 180 minus theta here? tan में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव. तो tan अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इसका cot भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec, sec भी नेगेटिव रहेगा क्योंकि cos नेगेटिव है, sec नेगेटिव है. क्योंकि sin पॉजिटिव है तो sec जो उसका रेसिप्रोकल होता है वो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव. तो सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें सारे ही पॉजिटिव थे, उनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव है. इसमें सिर्फ कौन पॉजिटिव है? sin पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है. तो कंक्लूजन इज दैट हियर ऑल आर पॉजिटिव. Here only sin theta is positive or its reciprocal is also positive. Similarly, आप कर सकते हैं, अगर आप यहां पे पॉइंट लें ये वन, तो ये थीटा, ये कितना होगा यहाँ पे? दिस एंगल, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज थीटा. तो ये थीटा किसके बराबर है? अगर ये थीटा है तो दिस विल बी 180 समथिंग प्लस थीटा. दिस एंगल इज 180 plus theta. तो आप ये लेंगे, दिस इज व्हाट? नेगेटिव. नो, ये साइड क्या है? नेगेटिव. ये साइड क्या है? नेगेटिव. तो इसमें क्या पॉजिटिव रहेगा? साइन 180 प्लस थीटा में 180 को आगे क्रॉस करके जा रहा हूं. cos 180 प्लस थीटा, मैं सारे लिख रहा हूं. tan 180 प्लस थीटा, तो आप इसके रेसिप्रोकल्स भी लिख सकते हैं. तो व्हाट इज sin 180 प्लस थीटा क्या रहेगा? इसमें साइन क्या रहेगा? साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर, दिस 90 डिग्रीज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव. cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो व्हाट इज बेस हियर? नेगेटिव. हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, हियर इट इज नेगेटिव. बेस नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव. हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव. The base is negative, hypotenuse is positive, then we get a negative. What is tan here? Negative upon negative. So negative upon negative becomes negative divided by negative. What we get? Positive. तो क्या conclusion निकला? Tan is positive. And obviously, अगर tan positive है तो इसका cot क्या रहेगा? Cot 180 plus theta वो भी क्या रहेगा? Positive रहेगा. And इसके reciprocal, sin का reciprocal क्या है? Cos का क्या होता है?
sec 180 प्लस थीटा वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव, और cosec 180 प्लस थीटा वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, और इसमें tan ही पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। तो हियर आई एम राइटिंग tan is positive। Let's take another point somewhere here। यहां ले लेते हैं, तो यहां से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब एंगल कितना है, यहां से यहां ये एंगल, और अगर हमें तो ये एंगल चाहिए, तो अगर ये एंगल कितना होगा, ये पूरा 360 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 360 माइनस सम थीटा। If it is theta, angle ये मानना आपने, if it is theta, this angle is theta, so actually this angle will be 360 minus theta। So what is 360 minus theta? Let's check it। Sin 360 minus theta। Once again, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये एंगल theta is always acute। Theta is acute। It's very important। Theta is always acute। यहाँ theta था ये, तो ये एंगल जो ले रहे हैं, तो वो कितना, ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 180 माइनस थीटा, वो भी आ जाएगा वैसे। तो अगर ये एंगल कितना होगा, 180 प्लस थीटा समथिंग, थीटा इज दिस, तो ये एंगल यहां से घुमाएंगे तो कितना आएगा, 180 प्लस थीटा। दिस इज थीटा, तो ये यहां से यहां घुमाएंगे तो ये एंगल कितना आएगा, 360 माइनस थीटा। तो ये साइन 360 माइनस थीटा, और विल बी साइन 360 माइनस थीटा। चेक कर लो, साइन 360 माइनस थीटा कितना आएगा, आप चेक करें। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो कितना आना चाहिए, साइन। तो व्हाट इज साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव वी गेट नेगेटिव। cos 360 माइनस थीटा कितना आएगा, cos में क्या होगा, बेस upon hypotenuse, base hypotenuse positive, here it is positive। tan क्या आएगा इसमें, tan नेगेटिव आएगा, आप चेक कर सकते हैं, perpendicular upon base नेगेटिव, तो cot भी नेगेटिव आएगा, और sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, और sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, वो इसमें नेगेटिव ही आएगा। तो व्हाट्स द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये निकला, इसमें cos पॉजिटिव है एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव है, इसमें tan पॉजिटिव है, और इसमें cos पॉजिटिव है, और ऑब्वियसली उसके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव हैं। तो बच्चे लोग इसको याद कर सकते हैं। इसमें A stands for all, S, this is A stands for all, S stands for sin, T stands for tan, and C stands for cos। तो आप याद कर सकते हैं, add sugar to coffee, or you can say after school to college। So see, तो आप phrase, what is the phrase, add sugar to coffee, add sugar, T capital कर लो, to coffee, or you can say after school to college, after school to college, after school to college। तो क्या पाया आपने, in first quadrant all sine and all trigonometric ratios are positive, इसमें sin and its reciprocal is positive, इसमें tan and its reciprocal is positive, और इसमें cos और cos का reciprocal क्या होता है, वो भी positive। Add sugar to coffee, or you can say after school to college। तो these are the two phrases, आप इसे याद कर लें। थीटा इज acute, एंगल हमेशा कैसे नापते हैं, इस एक्सिस से नापते हैं, एंगल हमेशा इस एक्सिस से नापते हैं,
तो बिफोर आई go to the next topic, let me explain once again. इनको थोड़ा confusion है, इनको समझ में नहीं आया है. Once again, see here. This is x-axis, this is x dash axis, this is y dash. ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्सिस होती है. ये पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है. एंगल मैंने अभी बच्चे बताया था, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं. तो अगर यहां तो मैंने बता दिया थीटा इज ऑलवेज अक्यूट. तो अगर पॉइंट यहां पे है, तो यहां पे साइन थीटा क्या रहेगा, और बीटा. अब ये अगर थीटा ले रहे हैं अगर आप, तो व्हाट विल बी दिस एंगल 180 माइनस थीटा. अगर आप ये एंगल ले रहे हैं, इफ इट इज थीटा, तो व्हाट विल बी दिस एंगल 180 माइनस थीटा. तो दीज आर द वैल्यूज. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. अगर पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है, ऐसे है, फिर आपका एंगल थीटा क्या होगा, ये वाला होगा. तो इस केस में ये एंगल है. और आप ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो यू कैन टेक 180 प्लस थीटा. इफ थीटा इज अक्यूट यू कैन टेक इट 180 प्लस थीटा. आप इसे भी थीटा ले सकते हैं. अगर आप ये थीटा लेते हैं तो ये आएगा आपका 180 माइनस थीटा. देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. कोई भी थीटा ले सकता. इफ यू आर वेरी मच स्टिक टू दिस वैल्यू कि थीटा अक्यूट ही है, तो टेक इट थीटा दिस. ये एंगल कितना होगा यहां से आप मेजर करेंगे तो 180 माइनस थीटा होगा. दिस इज बेटर वन. टेक दिस एज थीटा, टेक दिस एज 180 माइनस थीटा, टेक दिस एज थीटा. तो ये एंगल यहां से कितना आ जाएगा 180 प्लस थीटा. ये इस क्वाड्रेंट में आएंगे. तो इफ यू आर वेरी मच स्टिक टू द थीटा इज अक्यूट एंगल, तो अगर ये थीटा यही लेना है आपने, तो इसका यहां से जो मेजर आएगा वो कितना आएगा, ये वाला एंगल. इट विल बी 360 माइनस थीटा. दिस एंगल विल बी 360 माइनस थीटा. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ऐसे, अगर ये थीटा है तो आप ले सकते हैं, ये थीटा है तो कितना एंगल आएगा, ऑल आर पॉजिटिव. तो थीटा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है. तो ये मैं आपको बताना चाहता था. इसमें सारे पॉजिटिव हैं. इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो है 90 डिग्री से, थीटा बोला अल्फा ले लो, थीटा अल्फा जो 90 डिग्री से ज्यादा सी है. 180 माइनस थीटा इज अक्यूट. अगर थीटा अक्यूट है तो इसमें 180 से थोड़ा कम है और 90 से ज्यादा है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में, इफ यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, हमने प्रूव किया कि वैल्यूज किसकी पॉजिटिव होती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.